Okay, then these are the lectures. So let me know, is my screen visible to all of you? Yes, sir, it's visible. Okay, so this is a lecture number. Yeah. So now we are starting a new topic here. Okay, it is just a design strategy, and it will be more helpful of, this topic for you in your in next semester when you learn design and analysis of algorithm, and when you appear for the company exam. Okay, till now we were just focusing on the program. You are having some situation, you are having something, and you just need to write the code. Okay, there is no specific guidelines which procedure you need to follow till now. Okay, sometimes if you remember, in the factorial, in the question, whenever you need to write a code to find the factorial or to find the Fibonacci series, we have written two type of codes. First one we have written an iterative code, and second we have written a recursive code. Do you remember, guys? Yes, sir. ठीक है. So we have written two type of codes, मतलब in the function iterative, recursive. If you remember, one more example, greatest common divisor. So the greatest common divisor we discussed with using recursion only, but that program also we can do with the iterative program. ठीक है. No, so there are two type of design strategy when you are writing a particular code. First one is the top down, and second one is the bottom up. So there are two type of design strategy. ठीक है. And which type of will be useful sometimes, in the company exam they will specify you need to write your code using this design strategy. ठीक है. So this is a topic in your subject and in your syllabus. ठीक है. So in computer science, there are two design strategy. First one is top down, and second one is bottom up. ठीक है. So there are two. ठीक है. So in the top design approach is based on planning and a complete understanding of a system. ठीक है. I will explain this with the example and with the diagram, each and everything. ठीक है. So based on the planning and complete understanding of a system. ठीक है. And suppose जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, if you need to find the factorial of 5. Factorial of 5. So you know factorial of 5 will require calculating factorial of 4. ठीक है. And then factorial of 4 require calculating factorial of 3. Factorial of 3 require calculating factorial of 4, factorial of 2, and so on. ठीक है. So in the design, in the top down design strategy, we will so if we need to calculate the topmost level. So we will calculate, so we will divide this topmost level into some different small sub problems, and then we individually solve these sub problems separately, and then we will combine the result. ठीक है. So is implemented by attaching the stops in place of modules. मतलब कि बड़ी problem है. There is a big problem. We have divided into small. ठीक है. We have attached the stops in the modules, and then we calculate all of them. ठीक है. And then all the individual subcomponents are being implemented later. This is top down. ठीक है. Bottom up में क्या होगा? Opposite है. We will take a small step. ठीक है. Suppose मैंने example दिया, if you need to find the factorial of 5. ठीक है.
सो आप कैसे करेंगे फैक्टोरियल ऑफ 5 को फाइंड करने के लिए? यू विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्मॉल स्टेप। ठीक है, स्मॉल स्टेप मतलब कि फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, सो आप क्या करेंगे? यू विल स्टार्ट फ्रॉम फैक्टोरियल 1, देन फैक्टोरियल 2, देन फैक्टोरियल 3, देन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सिंपल स्टेप है। टॉप डाउन भी से ब्रेकिंग अ बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर चंक, breaking a bigger problem into smaller chunk, और bottom up में क्या है? Focus on amalgam smaller chunk to paint the complete and bigger picture। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि सपोज यू नीड टू पेंट योर हाउस, और यू नीड टू पेंट अ बॉल ऑफ योर हाउस। तो आपने क्या किया? इंस्टेड ऑफ पेंटिंग द होल बॉल, आपने क्या किया? बॉल को आपने डिवाइड किया 4 रीजन में, फिर 4 रीजन को अगेन डिवाइड किया 4 मोर रीजन में, देन आप उन 4 मोर रीजन को कंप्लीट किया, आपने 4 मोर रीजन को कंप्लीट किया। ठीक है, सो यू हैव कंप्लीटेड 4 डिफरेंट रीजंस एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिफरेंट 4 रीजंस विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, बॉटम अप में क्या होगा कि यू हैव नो क्लियर पिक्चर ऑफ द वॉल। ठीक है, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ कॉर्नर, ठीक है, and you just paint them and then you move forward, move downward and then show on, so you don't have the complete picture। ठीक है, again more detail is here। one popular design strategy for program for any significant size। ठीक है, कोई भी अगर बड़ा साइज का प्रॉब्लम है, there is a complex problem, so we will use top down। ठीक है, this strategy start with a global view, मतलब global view मतलब पूरा we are seeing the entire problem at a time। ठीक है, and then we are breaking them into smaller problem। ठीक है, and bottom up में क्या होगा? just opposite, you don't have the global view, आपके पास क्या है? local view है। ठीक है, are you understanding what is the difference between global and local view, friends? hello? Yes, sir. मतलब you have a whole picture of your program। ठीक है, लोकल व्यू यू डू नॉट हैव द होल पिक्चर। जैसे आपने देखा होगा वेन एवर आई ट्राई टू राइट अ कोड, मैं क्या करता हूँ? एक सिंपल स्टेप लिखता हूँ, देन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू, देन आई जस्ट ऐड वन मोर स्टेप, देन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू। सो मैं हमेशा क्या करता हूँ? आई ऑलवेज ट्राई टू शो यू द कोडिंग इन अ बॉटम अप मैनर, एक स्टेप बाय स्टेप, मैं होल पिक्चर नहीं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सो इन द टॉप डाउन क्या होगा? वी हैव अ ग्लोबल पिक्चर, मतलब एंटायर प्रॉब्लम, एंड देन वी विल ब्रेक देम इनटू स्मॉलर मोर मीनिंगफुल सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, ईच सब प्रॉब्लम जो होती है वो आइसोलेटेड होती हैं। ठीक है, सो प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन में कंटिन्यू, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन कंटिन्यू रहेगा अनटू द लोअर लेवल। ठीक है, a function are developed, these are the सब theoretical thing, this is important things here। ठीक है, in top down, a complex problem is broken into smaller fragments, better known as modules। उनको क्या कहते हैं? better known as modules। ठीक है, these modules are further broken into smaller fragment units। हम उनको फिर से डिवाइड ब्रेक करते हैं। कब तक करते हैं? until no longer division is possible। ठीक है, कब तक हम करते हैं? until no longer division is possible। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलराइजेशन। तो समटाइम्स देयर मे बी अ theoretical question just explains what is top down and bottom up strategy with example and with the difference। ठीक है, so this whole process is called modularization। this is a topic of your syllabus। ठीक है, however during the modularization process you must maintain the integrity। क्या होगा? whenever you are breaking a large problem into sub problem, so in order to do that you need to maintain the integrity and originality। ऐसा ना हो कि you are solving small problems and the main goal you are losing the main goal। ठीक है, so this is the top down approach। I will explain this with the example here। ठीक है, so we will cover advantage and disadvantage after this। See, this is a picture here।
Suppose you have a big problem like you need to calculate the Fibonacci F5. F5 means fifth Fibonacci term. Okay, so you need to calculate the fifth Fibonacci term. So you know the fifth Fibonacci term is the summation of the fourth Fibonacci term and the third Fibonacci term. So you will divide this into two subproblems. So you will calculate this fifth Fibonacci term and you will calculate third Fibonacci term. Okay, now you know fifth Fibonacci term is dependent on the third Fibonacci term and the second Fibonacci term. Okay, so instead of calculating fourth Fibonacci term, you will calculate first third Fibonacci term and second Fibonacci term. Again, this third Fibonacci term is dependent on the second and the first Fibonacci term. So you will calculate these two first, similarly so on and so on. Okay. So now, did you recognize any drawback of this? Did you, friends? Did you notice any drawback here? Friends, or did you notice any drawback? So then, even if one step goes wrong, the entire structure will break. Nahi, this is not the drawback. The drawback is, see here, here also we need a third Fibonacci term, and here also we need third Fibonacci term. So we are calculating मतलब a single Fibonacci term two times. वो तो ठीक है, आपने जो स्ट्रक्चर बताया दैट इज फाइन, ठीक है, वो वी नीड टू ब्रेक, यस, ठीक है, वी विल ब्रेक अंटिल नो फर्दर डिवीजन इज पॉसिबल. सो दिस इज द एक्चुअली डिजाइन स्ट्रेटेजी हियर, ठीक है. बट हियर वन मोर थिंग इज टू नोटिस इज फॉर कैलकुलेटिंग दिस f of 4 we need f of 3, and for calculating this f of 5 we need to calculate this. So we are calculating a single term twice here. Similarly for this f of 2, f of 2. Similarly for this f of 2, I think is two times here, here and here. So this is the drawback here. Okay. So we are discussing the advantage and drawback. Advantage is everyone know we are breaking a bigger problem into smaller problem. We are testing and debugging efficient easier होगा, एंड इम्प्लीमेंटेशन थोड़े स्मूथ एंड शॉर्टर होगा. ठीक है, ठीक है. दीज आर द ड्रॉबैक. दिस इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग. This is a topic of your future subject, that is a design and analysis of algorithm. Uh, uh, there is a very famous book for this design and analysis of algorithm, that is Aho and Corman. Sorry. So I'm writing this topic is from design and analysis of algorithm. You will study this topic in detail in the future. Design and analysis of algorithm. It is in third year in computer science BTech, and I think in BCA it might be in the second year. Okay, so it is a topic from design and analysis of algorithm subject. Okay, so there you have two type of problem. First one is dynamic programming, second one is gridding. So we are not focusing in detail, I will just give you a brief idea. Okay, so main drawback is all decision made from the beginning of the project depends directly or indirectly on the high level. Okay, and second drawback you see here is that computing the same Fibonacci numbers मल्टीपल टाइम. ठीक है, तो सेम फेवरेट सिस्टम वी आर कंप्यूटिंग मल्टीपल टाइम, जैसे कि एफ ऑफ 3 वी आर कंप्यूटिंग मल्टीपल टाइम्स, एफ ऑफ 2 वी आर कंप्यूटिंग मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, सो इन नेक्स्ट पेज आई विल शो यू अ सॉल्यूशन, so you will get right of this redundant work. ठीक है, but this will not be the complete from your syllabus. This is an extra thing, I think, from dynamic programming. But we are discussing top down.
So we should discuss at least a small example here. ठीक है, because it isn't just a computer science programming topic. ठीक है, so this is a one drawback. We will discuss the solution of this in the next page. ठीक है, how we will get rid of this using dynamic programming. ठीक है, now see the bottom up just opposite होगा. Contrary to the top down approach, bottom up programming focuses on designing an algorithm by beginning at the very basic level. ठीक है, we will start with the very basic level. So in the same example, computing the fifth Fibonacci term. ठीक है, so we will not compute fourth and third Fibonacci term. We will start from the zeroth Fibonacci term, f of 0, then f of 1, then f of 2, then f of 3, then f of 4, then f of 5. So we will start from the very basic level. ठीक है, in this approach the modules are designed individually, ठीक है, and are integrated together to form a complete design. ठीक है, bottom up approach is more suitable when a system need to be created from the existing component. ठीक है, हमारे पास suppose already existing component है, then we will adopt a bottom up approach and we will integrate these existing components. ठीक है, ठीक है, so advantage just a theoretical things here. Test conditions easier होते हैं, observation. ठीक है, so we can read that. ठीक है, ठीक, अब इसमें क्या होता है, इन द बॉटम अप देयर मे बी द there may be the case when you are calculating a sub problem and finally this sub problem may not required for the final solution. So this may be the case here. ठीक है, even though some of the solutions sub problems are not needed to solve the entire problem, so this may be the limitations. ठीक है, so for calculating f of 5 we will start from f of 0, then f of 1, then f of 2, then f of 3, f of 4 and f of 5. ठीक है, क्लियर है, ये ठीक है ना फ्रेंड्स? हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes, sir. ठीक है, देखो नाउ वी आर डिस्कसिंग एन एग्जांपल हियर. ठीक है, सेम एग्जांपल, Fibonacci series with the help of recursion we have to calculate the fifth Fibonacci term. ठीक है, so we know f of n is equals to f of n minus 1 plus f of n minus 2. ठीक है, where f of 0 and f of 1 are both 1. मतलब अगर n equals to 0 है then हमारा आउटपुट 1 होता है, then f of 1 भी 1. ठीक है, कुछ बुक्स में आपको f of 1 से स्टार्ट करते हैं तो that doesn't matter. ठीक है, so f of n is equals to f of n minus 1 plus f of n minus 2, and whenever we need to calculate f of 5, so we will calculate f of 4, f of 3. When we need to calculate f of 3, we will calculate f of 3 plus f of 2 and so on. And what will be the code for that? This, इसका कोड क्या होगा, बताइए. This will be the code here. If n is less than 0, incorrect input. If n equals to 0 or n equals to 1, we will just return that. Else this will be the code here for nth Fibonacci term. Yes or no? Hello, hello, hello. Yes, sir. So this will be the code. Okay, I will show you the code on Jupyter notebook. Just a minute. Okay, Jupyter notebook. Okay.
Okay, so Fibonacci of n, ठीक है, if n is less than 0, there is a problem here, wrong input, ठीक है. Okay, if n is equals to 0 or n is equals to 1, sorry, okay, return, क्या रिटर्न करना है, रिटर्न 1, ठीक है. if n is नहीं तो फिर else लगा सकते हैं, ठीक है, else return this Fibonacci n minus 1 plus this Fibonacci n minus 2, ठीक है. ओके ओके, हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं 5 n a 5 8, ठीक है. क्या होता है Fibonacci सीरीज, 0 then 1 then 1 then 2 then 3 then 5 then 8, ठीक है. सो हमने ये वाला टर्म कंसीडर नहीं किया, आई थिंक. ये स्टार्टिंग के दो टर्म वी डिड नॉट कंसीडर हियर, ठीक है. वी कैन कंसीडर देम आल्सो, ठीक है. क्वेश्चन ये ठीक है ना? सर आउटपुट तो गलत आ रहा है ना? गलत आ रहा है क्यों? नहीं सर, ठीक है, सही आ रहा है सर, सॉरी सर. ठीक है, वो मैंने क्या किया कि वो Fibonacci सीरीज वी हैव नॉट स्टार्टेड फ्रॉम 0, आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो. मैंने एक केस स्किप कर दिया है यहाँ पे, ये वाला केस, ठीक है. ये वाला केस हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है. ओके, n इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन लिख देते हैं. रिटर्न मतलब क्या होता है कि वो ब्रेक हो जाता है ना, RETURN रिटर्न मान, ठीक है. तो फिर टर्म ये हो गया, ठीक है. क्लियर है? तो फिर अब आपका यहाँ तक चला गया. तो हमने 0 टर्म से स्टार्ट किया, इसलिए जो फिफ्थ टर्म होगा ये 0th टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म. यहाँ पे 6 इनपुट करके देखिए तो 8 आएगा, ठीक है. फिर 13 आएगा बाद में, तो यहाँ पे 7 करके देखिए तो 13, ठीक है ना. सो दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच, बट टॉप डाउन अप्रोच में लिमिटेशंस क्या है? limitations we have already discussed, the limitations here, this limitations we have already discussed. Okay, we are calculating some Fibonacci term twice, ठीक है. this is a limitation, ठीक है. so ये limitations है, our function call stack will have multiple call to the same calculation. this is the limitations here, ठीक है. so to do away this we use a top down approach using dynamic programming, ठीक है. अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो टॉपिक इज फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट, बट आई कैन गिव यू अ एग्जांपल हियर, ठीक. इफ यू आर विलिंग टू डू, ठीक है. एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स? Yes, sir, please. हाँ, ठीक. So to do away with this, we use a top-down approach using dynamic programming. Top-down approach using dynamic programming, which is called memoization. Memoization, ठीक है. एंड इसके लिए हम क्या करते हैं? We will create an array. We will create an array to store the calculations. To store the calculations, ठीक है.
अब देखो सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, पाइथन में एक्चुअली वी हैव नॉट डिस्कस्ड द numpy mod numpy पैकेज, ठीक है। numpy पैकेज के थ्रू वी कैन क्रिएट अ वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे एंड सो ऑन। सो वी हैव दिस limitations. We can't create array here right now. So we have the concept of list, we have the concept of dictionary for the collection of literals, ठीक है। So whenever we will learn numpy array, so in numpy array I will show you this array part, ठीक है, so that no duplicate calculation are performed. For example, see, in the above Fibonacci function, once we have calculated the result Fibonacci 3, क्या करेंगे, we will store this result, we will store this result in an array, ठीक है, और whenever this result is required we will reuse that result, ठीक है। So the main goal is what? Memoization. Memoization means we are storing intermediate result, we are storing intermediate results, ठीक है, and whenever the results are required we will reuse them, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ कैसे करते हैं मेमोराइजेशन, ये ठीक, मैं फैक्टोरियल वाला एग्जांपल आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए सपोज आपके पास यू आर हैविंग एरे FACT मैक्स, ठीक है। सपोज आपके पास क्या है, एक एरे है, और मैक्स मतलब क्या है कि बहुत बड़ा, द लार्ज साइज एरे, ठीक है। मे बी द साइज होगा आपका मे बी थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ एलिमेंट इट कैन हैव। एरे मीन समझ लीजिए आप कलेक्शन ऑफ लेटरल्स, जस्ट लाइक लिस्ट, जस्ट लाइक डिक्शनरी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो, Yes, sir. ठीक है। सो हमने क्या किया यहाँ पे, बी यूज एन एरे, ठीक है। ये क्या है, दिस इज एरे दैट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, और दैट स्टोर ऑल रिजल्ट्स, दैट स्टोर ऑल रिजल्ट्स, ठीक है। और हमने इसको क्या किया, इनिशियलाइज विथ -1। देखो फैक्टोरियल कांट बी नेगेटिव, फैक्टोरियल नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, सो हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया नेगेटिव नंबर से। जस्ट सपोज इन दिस एग्जांपल, सपोज वी आर हैविंग f, ठीक है, और हमने इसको -1 ऐसे -1 -1 बहुत बड़ा, ठीक है। एक्चुअली मैंने numpy नहीं पढ़ाया आपको, सो आई कांट यूज द पैकेज अवेलेबल इन numpy टू डू दिस थिंग ऑटोमेटिकली, सो वी आर डूइंग दिस मैनुअली हियर, ठीक है। सो ऐसे कर सकते हैं, और हम एक फॉर लूप का यूज भी करके बना सकते हैं ना, ओके, -1 फॉर I in रेंज, ओके 100 का, ठीक है। सपोज हमने 100 ले लिया साइज इसका, तो एक ऑटोमेटिकली बन गया ये, ठीक, देख रही है मैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक दिस हमने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड एन एरे दैट स्टोर ऑल इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, इसको इनिशियलाइज कर दिया विथ -1, उसका साइज क्या है, मैक्स। अभी हमने यहाँ पे साइज कितना सेट किया है, इन अवर एग्जाम्पल हमने 100 साइज सेट किया है। मैक्स मीन्स अ वेरी लार्ज नंबर, क्योंकि हमें नहीं पता है कि विच फैक्टोरियल वी आर कैलकुलेटिंग और विच फैबोनिक सिस्टम वी आर कैलकुलेटिंग, इट मे बी लार्ज वन, दैट्स व्हाई, ठीक है। अब हमने क्या किया, सो वी हैव क्रिएटेड फैक्टोरियल फंक्शन हियर, फैक्टोरियल Sir, can फंक्शन, you हाँ repeat सॉरी, this again? So that code you are writing now, can you explain this again? या ठीक है। हमने क्या किया, सो वी आर यूजिंग टॉप डाउन अप्रोच विथ एंड स्टोरिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, एंड स्टोरिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, ठीक है।
सो वी आर कैलकुलेटिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग द एग्जाम्पल फैक्टोरियल वाला, ठीक है, फैक्टोरियल वाला। सो हमने क्या किया, वी हैव टेकन एन एरे, वी हैव टेकन एन एरे और द साइज ऑफ द एरे इज इनफाइनाइट, और यू कैन से मैक्स, बहुत बड़ा लार्ज एरे, ठीक है, मे बी 100 और थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस, ठीक है। और जो इसकी इनिशियल वैल्यू है, ऑल इनिशियल वैल्यू आर सेट टू -1, कोई भी नेगेटिव नंबर, हमने -1 क्यों लिया, बिकॉज फैक्टोरियल कांट बी नेगेटिव, तो हमने -1 दे दिया, मतलब एक वैल्यू दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। नाउ वी हैव रिटन अ फंक्शन सॉल्व, ठीक है, दैट विल फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एक्स, ठीक है, कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एक्स, ठीक है। आपने क्या किया, इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 बेस कंडीशन देन रिटर्न 1, ठीक है। नाउ आप चेक कर रहा है एट एनी केस, अगर जो फैक्टोरियल एफ ए सी एक्स, एक्स मतलब क्या है, वी आर कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल, वी आर कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल ऑफ एक्स, 5 होगा तो फैक्टोरियल ऑफ 5, 6 होगा तो फैक्टोरियल ऑफ 6, 7 होगा तो फैक्टोरियल ऑफ 7 एंड सो ऑन, और वी आर स्टोरिंग द इंटरमीडिएट रिजल्ट, हम इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है, एफ ए सी ऑल वैल्यूज आर -1, तो ये वैल्यू -1 होगी, यस और नो, दिस वैल्यू इज -1, Yes, sir. ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। नाउ इट विल कम हेयर, इट विल कम हेयर, और फिर यहाँ पे क्या होगा, इट विल कैलकुलेट x into solve x -1, it will calculate x into solve x -1, and the result will be stored where, FAC x, मतलब अगर हमने x5 पास किया है तो FAC5 का रिजल्ट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम यहाँ पे रन करते हैं, बट हम यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये शो नहीं कर सकते, दिस वन इन दिस प्रोग्रामिंग, ये वाला, दिस इज नॉट अवेलेबल हियर, तो इसके लिए हम ये यूज कर ले रहे हैं लिस्ट, ठीक है, हम इसके लिए लिस्ट यूज कर ले रहे हैं, ओके। एक्चुअली आप लोग ने क्या कहते हैं, सी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा ना, सी प्रोग्रामिंग में दिस विल बी मोर क्लियर, ठीक है। तो रिटर्न, ओके, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस एफ ए सी, सपोज एफ ए सी इक्वल्स टू -1 फॉर दिस, अभी हमने 100 का ले लिया है, ठीक है। ओ सॉरी, ओके, हाँ, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब ना आई एम सॉल्व, कोई अवेलेबल फंक्शन तो नहीं है इसमें, ब्लू दिखा रहा है ये, माई कर देते हैं, वो ब्लू, नीचे ब्लू कलर आता ही आई थिंक, ओके, ठीक है। अब मैं कॉल कर रहा हूँ माई सॉल्व 5, ओ सॉरी, if actually that was the pseudo code, or that is the code, so that's the problem. Okay, sorry, uh, mm, okay, FAC of x is equals to x into myself x -1, and you will return FAC of x. Now see, so the factorial of 5 is 120, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। सो क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे वी आर स्टोरिंग दिस इंटरमीडिएट रिजल्ट, एफएसी में हमने क्या लिया, एक एरे ले लिया, ठीक है,
and in this array we are storing all the intermediate results. ये देखें, तो इसमें क्या होगा आपका, फैक्टोरियल 5 भी होगा, फैक्टोरियल 4 भी होगा, फैक्टोरियल 3 भी होगा, फैक्टोरियल 2 भी होगा, फैक्टोरियल 1 भी होगा. Let me see whether we can print this or not. See, we can print this. ठीक है, तो देखिए ये -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि अब हमने इसको क्या किया, -1 इनिशियलाइज किया था. ठीक है, so this is factorial of 5, factorial of 4, factorial of 3, factorial of 2 and factorial of 1. ठीक है, सर तो ये हमें पूरा वो लिस्ट मतलब पूरा एरे क्यों नहीं दिखा रहा जब हम रिटर्न कर रहे, सिर्फ 120 क्यों दिखा रहा? अरे हम तो इसी को रिटर्न कर रहे हैं ना, हमने FAC नहीं लिखा है, हमने FAC of x लिखा है, आप नोटिस कीजिए. सर ये चीज समझ नहीं आई है, ऊपर जो आपने -1 फॉर आई इन रेंज वाली चीज लिखी है, एक बार समझा दीजिए फिर से. देखो, हमें क्या करना है कि कोई भी नंबर, मतलब जस्ट -1 मैंने ले लिया, -10 भी यू कैन राइट. ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जो जिसका फैक्टोरियल इज नॉट, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल ना हो. सो so -1 is a number which is not a factorial of any number. ठीक है, so we can verify, okay, we have not calculated factorial of this number. ठीक है, अगर सपोज यू आर चेकिंग फैक्टोरियल ऑफ 10 और फैक्टोरियल ऑफ 20, तो इन सबके जो फैक्टोरियल होंगे, द फैक्टोरियल ऑफ ऑल दीज नंबर आर पॉजिटिव नंबर. ठीक है, बट -1 ऐसा होगा, -1 इज अ नंबर एंड इट इज नॉट अ फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, इसलिए मैंने -1 लिखा. आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, -2, -3, -4, बट यू कांट राइट 0, you can't write 1, you can't write 2, because these are already factorials. ठीक है, अगर आप देखो, सपोज हमने यहाँ पे 6 कर दिया, अब आप देखना क्या प्रॉब्लम होती है. ठीक है, देखना, अब वो 120 तो गायब हो गया, जो 120 आंसर आना था आपका. सर इस लाइन का मतलब क्या हुआ? -1 फॉर आई इन रेंज 100 का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का आप लोग सर ये आई थिंक, फैक्ट इक्वल टू जो आपने लिस्ट के अंदर लिखा है -1 फॉर आई इन रेंज 100, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? आपको आई थिंक वो टॉपिक याद नहीं है, लिस्ट कंप्रेहेंशन. नहीं सर वो याद है, बट ये कर क्या रही है लाइन, यही समझ नहीं आ रहा सर मेरे को. ये -1 फॉर आई इन रेंज 100 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर क्रिएटिंग अ लिस्ट. ठीक है, आप एक लिस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और द साइज ऑफ द लिस्ट इज 100 और ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज -1. अच्छा ओके सर. ठीक है, एंड हम इसको इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग दिस लिस्ट टू स्टोर सम इंटरमीडिएट रिजल्ट्स. जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स है ना, दिस फैक्टोरियल 5 भी वी आर स्टोरिंग फैक्टोरियल 4, वी आर स्टोरिंग फैक्टोरियल 3, वी आर स्टोरिंग फैक्टोरियल 2. हमने 100 क्यों लिया, बिकॉज वी डू नॉट नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इसलिए जो मैंने यहाँ पे सूडो कोड लिखा है, मैंने लिखा मैक्स n, कोई एक लार्ज नंबर होगा. ठीक है, एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस. अगर देखो, अब मैं जैसे मैंने यहाँ पे 100 करता हूँ. ठीक है, तो ये 100, ये साइज ओवरफ्लो हो गया, 99 करना होगा आई थिंक. ठीक है, तो देखो ये काम, ये क्या है, वी आर कैलकुलेटिंग, ये एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज द लिस्ट इंडेक्सिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम 0. ठीक है, और हम यहाँ पे फैक्टोरियल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो ये -1 है, इसको इग्नोर कीजिए. दिस इज फैक्टोरियल ऑफ 1, दिस इज फैक्टोरियल ऑफ 2, फैक्टोरियल ऑफ 3, फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल ऑफ 5, फैक्टोरियल ऑफ 6, फैक्टोरियल ऑफ 7, फैक्टोरियल ऑफ 8, फैक्टोरियल ऑफ 9, फैक्टोरियल ऑफ 10, अप टू फैक्टोरियल तो ऑफ. सर एक डाउट है सर, जो आपने मतलब पहले वो ऊपर लिखी है फैक वाली लाइन, उसका मतलब है कि 100 बार उस लिस्ट में -1 स्टोर हो गया है? हाँ हाँ, यस यस, 100 बार हाँ, -1. तो सर जब आप ये लाइन लिखते हैं कि इफ फैक एक्स इज नॉट इक्वल टू -1, तो फैक एक्स तो -1 अगर 100 मतलब हर स्टोरेज स्पेस में -1 ही है, तो ये कंडीशन तो कभी आनी नहीं चाहिए ना फिर, क्योंकि हर जगह तो -1 ही है वो लिस्ट में. हाँ, तो मैंने क्या लिखा कि अगर -1, देखो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे x पास करा है, सपोज x की वैल्यू हमारी 5 है.
ठीक है ना। x की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो FAC ऑफ 5 इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो फॉल्स हो गया ना, वो नॉट इक्वल्स टू लिखा है मैंने। देखो हाँ अब सर, मतलब इसे गया ही नहीं ना वो रिटर्न फैक्ट वाली लाइन पे। उस पे वो गया नहीं। अब देखिए, आप सपोज आपको फैक्टोरियल 5 फाइंड करना है, ठीक है। फैक्टोरियल 5 के लिए आपने क्या कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल 4, ठीक है। फिर आपको जब फैक्टोरियल 4 फाइंड करना है तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल 3। एंड सपोज हमने फैक्टोरियल 3 पहले से कैलकुलेट कर लिया होगा, सो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। इफ FAC ब्रैकेट में 3 इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू -1, अगर हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया है देन इट इज -1। इफ वी हैव कैलकुलेटेड दिस, तो ये -1 नहीं रहेगा ना, ओके सर, आ गया समझ में। है ना। तो वो जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट रीयूज हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मेमोराइजेशन और दिस इज यूज्ड स्पेसिफिकली इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, वी विल स्प्लिट द प्रॉब्लम इनटू द सब प्रॉब्लम्स वेयर द सब प्रॉब्लम्स कोरिलेट विथ ईच अदर्स। तो फिर हम उसको क्या करते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को भी स्टोर देम एंड देन वी विल यूज। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आई थिंक अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको। यस सर। ठीक है। अगर मैं जैसे कहूँ, सपोज आपके पास यस 3, सर। देखिए सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसका साइज है 10/20। एक दूसरी मैट्रिक्स है, इसका साइज है सपोज 20/30। एक तीसरी मैट्रिक्स है जिसका साइज है सपोज 40/50। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप अगर ये फाइंड करेंगे, हम्म, ठीक है, कितने, हाउ मेनी मल्टीप्लीकेशन यू नीड, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर आप कंप्यूटर साइंस में इफ यू आर राइटिंग अ कोड एंड यू मस्ट चेक हाउ मेनी मल्टीप्लिकेशन यू रिक्वायर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है। सर लेकिन वो A मल्टीप्लाइड बाय B हो पाएगा, B मल्टीप्लाइड बाय C या A मल्टीप्लाइड बाय C हो ही नहीं पाएगा। हाँ, तो इसको मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। ठीक है। हाँ ओके सर। ठीक है। नाउ हाउ मेनी मल्टीप्लिकेशन यू रिक्वायर, हाउ मेनी मल्टीप्लिकेशन यू रिक्वायर टू सॉल्व दिस, इट डिपेंड। सपोज मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया और मैं ऐसे कर दूं, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूं, तो दोनों के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, दे कैन बी फाइनल सॉल्यूशन तो सेम आएगा आपका, बट जो इंटरमीडिएट द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन विल बी डिफरेंट इन बोथ द केसेस। ठीक है। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग विल यूज टू इम्प्रूव दिस। ठीक सर है। एक डाउट था सर। हाँ बोलिए। सर ये जो अभी आपने एरे वाली चीज बताई थी, ये टॉप डाउन अप्रोच की थी या वो बॉटम डाउन की, बॉटम अप की? हम उसको टॉप डाउन में यूज कर रहे हैं, उसको वी आर यूजिंग इन टॉप ठीक डाउन। है। हमने क्या कर ओके। रहे हैं, प्रॉब्लम को ब्रेक कर रहे हैं। दिस कैन बी यूज इन बॉटम अप आल्सो, हम बॉटम अप में भी यूज कर सकते हैं, बट दिस टाइम वी आर यूजिंग इन टॉप डाउन। ठीक है। ठीक है ना। यस सो सर। एक और यस। एग्जांपल देते हैं। अच्छा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए हाउ मेनी मल्टीप्लिकेशन यू रिक्वायर। सपोज एन वाई एन की मैट्रिक्स है, सपोज ए इज अ मैट्रिक्स जिसका साइज है एन वाई एन, एन एक कोई नंबर है, एंड बी एक मैट्रिक्स है जिसका साइज है एन वाई एन, हाउ मेनी मल्टीप्लिकेशन यू रिक्वायर। पहले जस्ट आंसर में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे मैथ में करते हैं ना, तो हाउ मेनी मल्टीप्लिकेशन यू रिक्वायर, n टू द पावर 3। आप चेक करना, n टू द पावर 3 आता है, दिस विल बी n टू द पावर 3 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये रहने दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं बस एक ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हम कैसे
परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, हाउ वी इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर कोड। ठीक है, सो ये जो टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच है, they might be helpful to understand them, they might be helpful to increase the performance of your code. ठीक है, sometimes they will be helpful to increase the performance of your code if you are understanding them. आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, there is a one drawback in this. Can I delete this? Not related to subject right now. ठीक है, हाँ, आपने नोटिस किया ये कि what is the drawback here in this code? Friends, anyone notice? देवसी, दत्ता, दिव्यांशी, अक्षित, किसी ने भी नोटिस किया है? अभिनव, अभीप्सा, आदित्य, अद्वैत, अक्षित, अर्चिता, anyone notice what is the drawback here? हेलो भाई, कोई तो आंसर दो। Yes, sir. Anyone notice what is the drawback here? कुछ भी आंसर इस वाले कोड में या फिर उसमें मैट्रिक्स वाले में? इस वाले कोड में, इस वाले कोड में हमने क्या किया, we use an array to store intermediate results, so we no need to require the factorial which we have already calculated, like in Fibonacci series में we can use this, but one is there is a one drawback. Can you please identify? सर जो लिस्ट हम बना रहे हैं उसमें स्टोरेज तो लिमिटेड ही है, वही ड्रॉबैक है शायद। स्टोरेज लिमिटेड वो ड्रॉबैक नहीं है, स्टोरेज वी कैन इंक्रीज द साइज। आपने सही पकड़ा, बस थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। स्टोरेज ही तो एक लिमिटेशंस है, स्टोरेज इज अ लिमिटेशन। वी आर यूजिंग एन एक्स्ट्रा स्पेस, हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एन एरे टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। We can write the factorial code also without using this, we can write factorial code without using this, yes or no? हाँ, डायरेक्टली रिकर्जन यूज कर सकते हैं। Yeah, but we are using this, so this is the limitations here. So we are trying to minimize the calculation, but we are using extra space. ठीक है, so we are trying to minimize the time complexity, मतलब हम टाइम को मिनिमाइज कर रहे हैं, but we are increasing the space complexity. ठीक है, so sometimes whenever you appear in the company exam, there may be the two type of question, how much time complexity and space complexity, मतलब how much time your system will take and how much memory it will occupy. ठीक है, so we are compromising with the space but we are gaining with the time. सर तो वो आप पढ़ाओगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह? एक्चुअली आपके सिलेबस का नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू द इन डेप्थ, मतलब इसका ये दिस इज नॉट योर सिलेबस, ये सिलेबस में आएगा व्हेन यू विल स्टडी द डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम सब्जेक्ट। ओके सर। ठीक है, इस सिलेबस के लिए बस मैं एक आइडिया दे रहा था कि आप मतलब चीजों को नोट, मतलब यू जस्ट नोटिस इन द प्रोग्राम कि व्हाट यू आर गेनिंग एंड व्हाट यू आर लूजिंग। ठीक है, computer science is not just about writing the code, it is about the writing the efficient code. ठीक है ना, efficient code. Okay, so this is fine here, yeah. So अब मैं इसमें और एग्जांपल बता देते हैं। सो Fibonacci वाला सेम था, देखो मैं Fibonacci वाला भी आपको ट्राई करके बता रहा था एक्चुअली, सेम कोड आई एम कॉपिंग हियर। इन द Fibonacci वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, ओके देखो, आई एम यूजिंग एन डिक्शनरी टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, बट मैंने दो ही इंटरमीडिएट रिजल्ट्स यहाँ पे स्टोर किए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में, एंड वी आर स्टोरिंग ऑल ऑफ देम हियर, बट दिस इज एन इटरेटिव एग्जांपल एक्चुअली, सो वी कैन, मैंने अभी इटरेटिव बताता हूँ आपको। हाँ, तो अब बॉटम अप, बॉटम अप में क्या होता है, टेबुलेशन, मतलब टेबुलेशन मतलब कि हम एक टेबल और इन एरे में स्टोर करते हैं रिजल्ट को। ठीक है,
सो अगेन बहुत सिंपल सा कोड है ये. इफ यू आर फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, we are using for I in range 1 comma n, and FAC of I is equals to FAC of I minus 1 into I. और FAC हमने एक ऑलरेडी बना लिया. सो देखिए द सेम थिंग हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और हम के ओके यहाँ पे बट यहाँ पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमें यहाँ पे अपेंड का यूज करना पड़ेगा. ओके चलो मैं इसको करता हूँ, मैं इसको एडिट करता हूँ. आई एम एडिटिंग दिस. ठीक है, मैं एडिट करके बताता हूँ आपको, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, सो फैक्टोरियल के लिए हम क्या करते हैं, एफ ए सी, एक हमने एम्प्टी लिस्ट लिया. ठीक है, ओके ओके, फॉर आई इन रेंज एफ ए सी ऑफ आई. ठीक है, ये काम नहीं करेगा यहाँ पे. डू यू नो व्हाई इट विल नॉट वर्क फ्रेंड्स? कैन यू प्लीज टेल मी? Can you please tell me why it will not work? हेलो. सर डॉट अपेंड नहीं है शायद इसमें उसमें. हाँ, ये डॉट अपेंड नहीं है इसलिए. तो कैन यू प्लीज मॉडिफाई इट, एफ ए सी डॉट अपेंड. आई. नहीं 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 नहीं, इसमें क्या करना पड़ेगा, एफ ए सी ऑफ आई माइनस वन, ओके, इनटू आई. ठीक है ना? और आपको बेस केस लिखना पड़ेगा एफ ए सी ऑफ जीरो, because when I is equals to 1, so it will be f of FAC of 0. then आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे FAC dot append 0. okay, let me see n कितना होगा. n की वैल्यू सपोज 10 कर देते हैं. 0 0 0 आ रहा है बिकॉज नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 0 हो गया ना वो. okay. I की वैल्यू 1, तो FAC डॉट अपेंड 0, तो वो 0 हो जाएगा. देन फॉर आई इन रेंज 1 कॉमन FAC डॉट अपेंड FAC ऑफ, इसका एक दूसरा तरीका है, फिर वो इसको -1 से इनिशियलाइज कर दें हम. ओके ओके, -1 फॉर आई, फॉर आई इन रेंज, ओके 10 कर दिया सपोज, या 10 कर देते हैं अभी. ठीक है, फिर 0 फाइंड कर दिया. फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, एफ ए सी ऑफ आई इज इक्वल्स टू एफ ए सी ऑफ आई माइनस 1 इंटू आई. ठीक है, अपेंड से भी वी कैन डू दिस, बट हमें थोड़ा उसमें टाइम सोचना पड़ेगा. ठीक है, सो एक प्रॉब्लम है -1, 1 होगी तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. -1 की जगह इसको 1 करते हैं. 1 2 फैक्टोरियल ऑफ 1 1 2 फैक्टोरियल ऑफ 3 6 फैक्टोरियल ऑफ 4. हाँ, थोड़ा थोड़ा आंसर आ रहा है ये, बस लास्ट वाला. फैक्टोरियल ऑफ 0, then factorial of 1, then factorial of 2, then factorial of 3, then factorial of 4, factorial of 5, factorial of 6, factorial of 7, factorial of 8. तो हम क्या कर रहे हैं कि we are calculating first factorial of 0, then factorial of 1, then factorial of 2 and so on. So this is called bottom up approach here. ठीक है,
So in the book you will find this is called tabulated version. ठीक है, tabulated version मतलब कि you are just writing your code in an array. ठीक है friends, so this is for today here. I have written some 2-3 more code, so I can discuss in the next class. सर Excuse me, sir. हाँ बोलिए. Sir, I was saying ki, sir, you messaged me regarding that na live internal lab test for the next week. So you can discuss it right now with the students, sir, like they want or not. हाँ, sorry. So friends, can we have lab exam next week? ठीक है, अभी हमने देखो फॉर इंटरनल असेसमेंट आई नीड टू टेक योर एग्जाम. ठीक है, और जो मिड सेम होते हैं देन द एंड सेम दे आर द एक्सटर्नल असेसमेंट. इंटरनल असेसमेंट्स लाइक योर क्विज हुए, अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, दीज आर द इंटरनल असेसमेंट्स. ठीक है, सो इंटरनल असेसमेंट्स हमने क्विज का लिया था. कैन बी हैव इंटरनल असेसमेंट फॉर लैब नेक्स्ट वीक? ठीक है, सिलेबस क्या होगा सर? क्या सिलेबस क्या होगा सर? सिलेबस हमने जो फंक्शन तक पढ़ा है ना, जैसे आपको क्विज में था सेम सिलेबस. वो एलएमएस पे ही होगा? विच नहीं, वो सिलेबस पूरा सिलेबस होगा. इसमें क्या होगा, क्विज में क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे. लैब एग्जाम में यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू नीड टू राइट द कोड. नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ एलएमएस पे ही होगा ये? हाँ, एलएमएस पर ही होगा ये, एलएमएस पर होगा. मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ एलएमएस पर होगा या कोड जिंजर पर, बट आई थिंक एलएमएस पर ही होगा. ठीक है, सर तो कब लोगे सर? और मंडे ट्यूसडे को कर लेते हैं लैब एग्जाम. सर मतलब लैब वाइज बैच वाइज लोगे सर? हाँ, बैच वाइज लेंगे या फिर आप कोई बताइए सुटेबल टाइम जब आप दोनों फ्री हो सेम टाइम, अदरवाइज फिर हमें लैब टाइम पर लेना होगा. ठीक है, हेलो. सर यस सर. हाँ ठीक सर है, वो तो हाँ आपने बताइए. लिखा था वो उसमें एक बारी दोबारा शो कर दो. क्या चीज? जो सर लास्ट में आपने कोड लिखा था पैक. मैं ये पूरा आपको अपलोड करूंगा ना. यस सर. सर उसी में कुछ डाउट है तो फिर. इसमें और ये फाइल जो मैं पढ़ा रहा था जिससे. नहीं सर, जो अभी आपने लास्ट में कोड लिखा था. अच्छा, लास्ट में जो कोड है, वो आई थिंक ये था कोड. कहाँ गया? नहीं नहीं, हाँ ये होगा कोड ये. यस सर. सर इसमें पहले 1 फॉर आई इन रेंज 10 है, फिर उसके बाद फॉर लूप के बाद आपने फैक आई इक्वल. कि मैंने वो नमपाई पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट इन द लिस्ट. ठीक है, अभी आप समझ लीजिए. हाँ, 1 फॉर आई इन रेंज मतलब कि वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग एन लिस्ट. ठीक है, और लिस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ फॉर ईच एलिमेंट. मतलब सर 1 to 10. रेंज 0 से स्टार्ट होता है. यस सर, रेंज 0 से स्टार्ट होता है, 1 से 1 फॉर आई इन रेंज. हाँ, 1 फॉर आई इन रेंज. हाँ, तो सारे एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे आपके. ऑल एलिमेंट्स विल बी 1 फॉर दिस लिस्ट एफएसी. दोज हु हैव क्लास दे कैन लीव. ठीक है, आपकी आई थिंक क्लास होती है 10:30 से, दे कैन लीव. हाँ बोलिए, अच्छे क्या नाम है आपका? सॉरी, अद्वित है ना? यस सर. फिर हाँ उसके बाद फॉर लूप के बाद जो ये फैक आई इक्वल्स टू फैक आई माइनस 1 इंटू आई है, तो सर ये जाएगा तो फॉर लूप से ही ना. हाँ, फॉर लूप से ही जाएगा. तो सर 1 माइनस 1 इंटू 1, अगर मतलब आई 1 से स्टार्ट है. हाँ, इसमें क्या होगा देखो, आपके पास क्या है, एफएसी 0. एफएसी 0 मतलब जीरो एलिमेंट मैंने यहाँ पे 0 सेट कर दिया. नहीं नहीं, ये सबसे आखिरी अपेंड क्या,
हाँ, ये मैंने क्या कर दिया, इसको 0 सेट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एफ ए सी ऑफ आई, एफ ए सी फॉर आई इन रेंज 1 to 10, आई की वैल्यू जो 1 होगी आपकी, तो ये कितना होगा, एफ ए सी ऑफ ये 0, आई माइनस 1, 1 - 1 0, एफ ए सी 0 इंटू आई वैल्यू कितनी 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू एफ ए सी ऑफ 0। तो इस तरह से भी विल कैलकुलेट, ओके सर। ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो वो लास्ट में 0 हट जाएगा, ठीक है। ओके, देन वी विल मीट द नेक्स्ट क्लास, ओके।